गया है भारत भाग्य विधाता। 7 days NSS annual special camp of BET Saadatunnisa Degree College concluded at Gausia College of Engineering Ramnagaram. 60 students participated in 1 week residential camp started from 13th February 2026. Valedictory function was held in Seminar Hall of Gausia College of Engineering. Bismillah Education Trust's Working Chairman Abdul Muhib, Vice Chairman Sheikh Umar, Secretary Siddiq Pasha graced the occasion. The management of BET Saadatunnisa Degree College thanked Gausia College of Engineering for providing full cooperation and support for organizing 1 week NSS camp at Gausia campus. तो दोस्तों, बेंगलुरु की बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज का 7 रोजा एनएसएस एनुअल स्पेशल कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में ये कैंप खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीबन 60 स्टूडेंट्स ने इस एनएसएस कैंप में हिस्सा लिया। वैलिडिक्टरी फंक्शन में बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, नायब सदर शेख उमर और सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा जलवा अफरोज थे। बीईटी कॉलेज की इंतजामिया ने गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की मैनेजमेंट प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया कि गौसिया के खूबसूरत कैंपस में पिछले 2 सालों से एनएसएस कैंप तमाम तर सहूलियात के साथ ऑर्गेनाइज करने का मौका फराहम किया जा रहा है। बीईटी सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल सुमैया फातिमा, एनएसएस ऑफिसर तबस्सुम व दीगर मौजूद थे। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हम उठे उठे गजग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। A warm welcome to the valedictory ceremony of our NSS special camp. As we gather here today, we celebrate the success of this camp and express our gratitude to everyone who made it possible. Let's make the ceremony a memorable one. To begin this program, I invite Quratul Ayn Final BCom to recite here. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار मदीने से यूं ही नहीं मेरी उल्फत, मदीने से
यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। अल्लाह नहीं जिसका हम पल्ला, कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। Assistant Professor, Department of Commerce and Management, to welcome the gathering. Professor from BT Sanathan Degree College. It gives me an immense pleasure and honor to welcome you all to the valedictory ceremony of our NSS special camp. Over the past few days, our volunteers have truly lived the NSS motto, not me, but you. This camp has not just been an activity, but a meaningful journey of learning, service, discipline, and teamwork. First and foremost, I would like to welcome Janab Abdul Muhid sir, Chairman, Janab Sheikh Umar sir, Vice Chairman, Janab Sheikh Siddiq Pasha sir, Honorary Secretary. We felt welcomed, guided, and cared for. The environment here is peaceful, green, and inspiring. The rooms provided to us were clean and comfortable, and the food served to us was not only delicious but also nutritious, keeping us energized throughout the camp. Our journey began with a beautiful inauguration where we were honored by the presence of respected dignitaries N.S. Kumar sir, Ejaz Ahmad sir, our campus director Muhammad Anis sir, NSS officer Tabassum ma'am, Dr. Atiq sir, and all the supporting staff who worked silently behind the scenes to make this camp successful. To make this camp successful, we were deeply thankful to our teachers who stayed with us and guided us every step of the way. Sadiqa ma'am, Aisha ma'am, Suhana ma'am, Tahseen ma'am, Prerna ma'am, their support and care meant everything to us. But it felt like a reminder of connection, of comfort, of belonging. Even now, I find myself wondering how long did that hug last? And also, we had time for sports and night, reminding us that service and joy can go hand in hand. As we move into our final day, it began with a sense of pride and unity with 7 a.m. assembly and NSS flag hosting, reminding us once again of the spirit and responsibility we carry as volunteers. The morning continued with the energy and teamwork through a friendly throwball match where competition meets affinity and every cheer echoes our bond as a team.
And finally, with the athletic running race, we didn't just run on the track, we ran with everything we've learned here, that is, discipline, strength, unity, and purpose. These 3 days were not just about activities, they were about connection with people, connection with communities, and connection with nature and with ourselves. NSS teaches us not me, but you. And these 3 days, we didn't just say it, we lived it. As we come to the end of this camp, we carry with us more than memories. We carry responsibility, we carry awareness, we carry a promise to continue serving wherever we go. On behalf of all the volunteers, I extend my heartfelt gratitude to everyone who made this camp possible and meaningful. Thank you for trusting us, guiding us, and giving us an experience that will stay with us for a lifetime. Jazakallah. BA. Respected dignitaries, teachers, and my dear friends, a very good morning a very good afternoon to everyone. Today I feel extremely happy and grateful to share my beautiful experience of our camp at Gausia College of Engineering. Day one itself started with excitement. As soon as we reached, we had our inaugural function. We were warmly welcomed, and the moment made us feel special. One of the speakers, Mr. N.S. Kumar, spoke about Gausia hospitality being very famous and honestly. After saying there, I can say it's true, 100% true. The way they arranged everything for us was amazing. After which we explored the campus. The campus was huge. We walked around, clicked their pictures, and enjoyed the peaceful environment. Later, we were assigned ground cleaning work. We cleaned dry leaves and helped maintain the surroundings. At first, some of us were like, oh no, cleaning work? But slowly it became fun. We realized that cleaning is not small work, it is a responsibility. When we finished, we felt proud looking at the clean ground and saying, yes, we did this. The most unforgettable moment of day one was the bonfire. It was my first ever bonfire experience, and honestly, it was huge and the best ever. We danced, laughed, sang songs, and enjoyed so much. That night taught me that happiness does not come from phone or social media. It comes from real people, real laughter, and real memories. Day 2 started very early at 7 a.m. with a yoga exercise. When we started stretching and breathing in the fresh air, we felt active and fresh. We also appreciate the beautiful campus of Gausia College of Engineering. The greenery, discipline, and faculties were truly impressive. We are very grateful to Gausia College to arranging a bus for us to visit our government school. We performed different awareness programs. We did a skit on drug awareness to show students how drugs can destroy lives and futures. We also conducted menstrual hygienes and awareness sessions to teach them about cleanliness and healthy habits. Our Nukkad Natak was based on the theme Youth Against Dirt and Diseases. Through this street play, we showed how garbage and lack of cleanliness causes diseases and how youth can take responsibility to keep the surroundings clean. We also gave career guidance and future planning ideas to the students. It felt good to guide them and encourage them to aim high. Another powerful moment was performing street play in slum areas. It was not just a performance, it was a responsibility. As part of charity, we distribute materials such as pens, pencil sets, snacks, juices, etc. When we saw their smiles, we understood the real meaning of NSS motto, not me but you. That day we did not just give materials, we shared care, respect and love. We also visited Janapada Loka Museum watching the museum, memorizing sculptures and in the nature's beauty what
captivated my attention was a group of 4 ducks was all the group in walking all the group together in one in any way. Any one of them missed, they took them together, which remind times. I had a great experience every time. However, this time I could see ample of activities have been taken place. As the motto is not me but you, I could see this batch of NSS team have been different level of enthusiasm, energy and contributing towards social activities. As I can see, this time all NSS volunteers donated stationery items and goodies to all students of school, and where we have conducted skit regarding drugs awareness and Swachh Bharat, and we have given the information about menstruation hygiene and precautions to take regarding that. Even we have conducted indoor activities to the students. They were so interactive and excited throughout the activities, and they did participate actively. We alumni students hoping to pursue our masters in this BET institution, it would be great opportunity to continue our master education in future upcoming days. We are more than happy to take admissions here. Last but not the least, I am thankful to Professor Principal Sumaya Fatima Madam who have provided this golden opportunity to be part of this NSS camp. Kindly do remember, at the end of the story, we are contributing to our society. Not me, but you. Thank you. The day for NSS. It is a memorial day for all who are joined over here. And in this valedictory function, your principal requested us to join this program. And even though our busy schedules, so we try to come over here. And moreover, Gausia Engineering College Honorary Secretary Janab Ismail Masal has to supposed to come to this program, but yesterday night he was informed that no, I am out of station, so you please carry on. So inshallah we join the next program if it is there. So respected Janab Abdul Muhib Saab, Working Chairman BET, Janab Sheikh Umar Saab, Vice Chairman BET, Sumaya Fatima Madam, Principal Sadhu Degree College, Janaba Salma Madam, Vice Principal BET, and our NSS officer Tabassum, and some of the lecturers. There are NSS members, I believe there are committee members. One is, what are the names? Sadiqa, Suhana, and Aisha. So very. Najmus Sahar also. So, and one more time, I am happy to hear that our alumni, students also, members also come over here. It is a great thing. जो पेरेंट्स आपके ये सोच करके मेरी बेटी ग्रेजुएट हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, कुछ इसके बाद कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, ऐसे सोचने वाले बहुत कम है हमारे कम्युनिटी के अंदर. सोचते तो ये हैं कि हमारी जो बच्ची बड़ी हो गई, लायक हुई, उसको शादी करना है. फर्स्ट पॉइंट हमारी कम्युनिटी के पेरेंट्स में आता ही वही है कि हमारी बच्ची जो है, तो ऐसा भी होता है हमारे बच्चों का, चलो कोई हम शादी को जाते हैं हमारे बच्चियों को लेकर, तो वहाँ घुस स्टार्ट हो जाता है, ये बच्ची अच्छी है, वो बच्ची अच्छी है, हमें इवन दो उन्होंने कहते हैं कि लड़की वाले नहीं, हमारी जो बच्ची पढ़ रही है उसका वो छोड़िए, उसमें क्या है, हम पढ़ा लेंगे, हम पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते भी नहीं, क्या भी नहीं. तो ऐसा जो बोल के वहाँ चिस्टे की बात चली जाती है कि पेरेंट्स जो खुश हो जाती हैं कि शादी करके दे दी. लेकिन
आपके जो पेरेंट्स हैं खुशनसीब हैं कि आप लोगों को यहाँ तक ग्रेजुएशन तक लेके आए हैं। आप ग्रेजुएशन किए, फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, कोई और भी सेमेस्टर्स में हैं, और मोर देन दैट आप लोगों को इस एनएसएस को ज्वाइन होने के बाद, वॉलंटियर्स में बनने के बाद, आपको आपके घर से, आपके गांव से बाहर भेजने के लिए तैयार होना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात है। ये जो है आप लोगों के ऊपर आपके वालिदैन का कॉन्फिडेंट है, एक कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, सही है ना। आपको जो है ना यहाँ तक भेजना, आउट ऑफ बेंगलोर आना, यहाँ ऐसे जो माहौल में कुछ एक्टिविटीज करना, कितनी बड़ी बात है। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनकी कदर करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आपके पेरेंट्स को यहाँ तक जो है ना भेजे, और जो है समझो आप फाइनल ईयर में हैं, कुछ और सेमेस्टर में हैं, अगरचे उसमें आप रैंक होल्डर बन गए या डिस्टिंग्विश के जो मार्क्स ले लिए, तो आपका रास्ता एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है आगे जाने के लिए। अगर जो 50%, 60% होता अच्छा, बस अब लड़के को ढूंढेंगे, शादी कर डालेंगे। लेकिन हमारा जो अदारा है बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट, दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1985, हमारा मकसद ये था कि बच्चे तो कैसा भी मोहल्ला छोड़ को, गाँव छोड़ को कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे। पेरेंट्स जो सोचने का जो उनका ढंग ऐसा था, बस कुछ भी यहाँ पढ़ा लेंगे, उसके बाद और भी ये भी एक था, चलो भी गवर्नमेंट स्कूल को भेज देंगे, कुछ पढ़ लेती है, कुछ 7th पढ़ लेती है, कोई 10th पढ़ लेती है, बस उसके बाद कुछ ना कुछ हम करके शादी करके हम भेज देंगे, जो ऐसा इरादा। लेकिन हमने चाहा कि हमारे जो उधर का जो एरिया है, हमारा मुसलमान जो वहाँ ज़्यादा बसते हैं, बिस्मिल्लाह नगर हो, गुरपन पढ़ लिया, तिलक नगर, जयनगर, नैन ब्लॉक ईस्ट, बसवनगुड़ी, बनशंकरी, मंगम पढ़ लिया, बमनहली, तो वहाँ जो ऐसा जो रिमोट एरिया है, वो रिमोट एरिया वाले जो मेन एरिया को आने नहीं चाहते। तो वहाँ देखो, वहाँ पढ़ो, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, कोई और स्कूल में भेजे, 10th हो गया, PUC हो गया, बस चलो शादी करो, भेज दो। लेकिन ये सोचते हुए जब हम जो हमारी टीम जो भी है BET की, हमारी लड़कियां भी है ना, ग्रेजुएट क्यों नहीं बनना, तो ये सोच हमारे में थी। ये सोच के जरिए से हम लोग जो वहाँ जब हमारी हाई स्कूल हो गई, तो उसके बाद PUC की तरफ सोचे, PUC होने के बाद डिग्री के वास्ते सोचे। तो सोचने के बाद जो है ना, अल्लाह का फजल है, हमारे पास आप जैसा जानते हैं, हमारे पास BA है, BCom है, BC है, BB है। तो ये भी हमारा ख्वाब है कि हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम स्टार्ट करें, ये हमारी कोशिश है। जितनी जगह उतनी जगह में जो हम यहाँ तक जो है ना लेके आए हैं। तो बहरहाल, तो मैं ये कहना चाहता था कि आपकी जो जर्नी माशाल्लाह जो यहाँ तक जो हुई, और इसके बाद की जो जर्नी आसान होने के लिए ये दिमाग, इट इज ए क्या बोलते हैं, अपना दिमाग जो है ना ब्रॉड माइंड होना, अपना दिमाग खुलना है। आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट को हम किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, तो ये माहौल हमने चुना कि इवन लास्ट ईयर भी चुना, ये ईयर भी चुना। यहाँ का जो बच्चे अब जो कह रहे थे, एटमॉस्फेयर जो यहाँ का जो है, खुली हवा है, खुली फिजा है, यहाँ झाड़ हैं, प्लांटेशंस हैं, एकदम इट इज नॉट इन दी एरिया ऑफ 1 acre, इट इज 13 acres ऑफ लैंड, 13-14 एकड़ जगह है। यहाँ देखते हैं माहौल क्या है, एक हमारे में कुछ ना कुछ करने के लिए, सोचने के लिए भी है ना, थोड़ा वक्त आपको यहाँ मिल गया। तो और साथ साथ में जो NSS का जो मकसद है, देखिए हमारे इंडिया के अंदर बहुत से NGOs हैं, बहुत से NGOs हैं। NGOs का तो मालूम ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये NGO होते हैं
जो काम गवर्नमेंट करना है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनजीओ। गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट में जो है ना, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो भी सहूलतें देना है पब्लिक को, उनको किस तरीके से एजुकेशन देना है, किस तरीके से उनका जो हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूवमेंट करना है, तो बहुत सी चीजें हैं उसमें। जो ये एनजीओस का जो किरदार है बहुत बड़ा किरदार है। तो ऐसे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत से एनजीओस हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जो है हमारे ये एनएसएस भी है, एनसीसी है, रेड क्रॉस है, लायंस क्लब है, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं, रिचेस्ट जो पीपल होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सर्विस करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे स्कीम्स में, ऐसे जो एनजीओस में आकर वो लोग जो है ना काम करना चाहते हैं। तो और एक बात यह है, जैसा कि आप यहाँ रूरल एक्टिविटीज में गए, रूरल में गए, वहाँ कुछ स्वच्छ भारत के जरिए से आप वहाँ कुछ क्लीनिंग का काम करें। जनपद लोग गए, वहाँ भी जो है ना आर्ट और आर्टिजन किस तरीके से वहाँ किए हैं, ये बहुत सी चीज़ें आपको है ना, आपको उसकी जानकारी हासिल हुई। और मोर ओवर क्या है, ये जो हमारा जो एनएसएस जो है, इट इज नॉट ए एनजीओ बट इट इज ए सपोर्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जैसा कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी तरीके से हमारा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है ना वो डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ आता है। मैं ऐसा ही जस्ट ग्लांस करता रहा तो एनएसएस वॉलेंटियर्स जो हैं, जैसा कि आप कितने हैं हमारे जो इंडिया के अंदर, कौन से स्टेट में कितने हैं, मैं ऐसा ही जो ग्लांस करता रहा, समझो आसाम है, उसमें है ना 64,633 वॉलेंटियर्स हैं। तो उसी तरीके से बिहार को जाओ, इतना बड़ा पॉपुलेशन है बिहार के अंदर, वहां सिर्फ जस्ट 45,771 वॉलेंटियर्स हैं। कितना बड़ा स्टेट हुआ बिहार। तो उसी तरीके से हम आगे जब बढ़े तो छत्तीसगढ़, इट इज नॉट ए बिग स्टेट, इट इज ए स्मॉल टाउन स्टेट। वहां है ना 1,07,357 वॉलेंटियर्स हैं। और रही बात हमारे जैसा है कि जब हम कर्नाटक को आए तो बहुत अच्छा खासा फिगर है, कितना है 3,22,200 वॉलेंटियर्स हैं हमारे जो कर्नाटक के लिए। खाली हमारा है बनता है आप लोगों के लिए। वो 2 लाख वॉलेंटियर्स में आप भी उसमें हैं शामिल है, 2 लाख आप भी उसमें शामिल है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, आप लोग जो है ना इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल्स वगैरह जब आकर जब पूछते हैं तो सर यहाँ ले जाना, वहाँ के ले जाना, कोई फैक्ट्री को विजिट करना, हम मैनेजमेंट कभी भी है ना नहीं किया। आप बच्चों की अगर हिफाजती के साथ और उनके पेरेंट्स के परमिशन के साथ अगर वो बच्चे आ जाए तो बिना लेट करके तुम वो बच्चों को लेके जाओ, कहीं भी जाओ। परसों जो है मैडम बोले वो कोको कोला फैक्ट्री जाए, हाँ लेके जाओ। एक बार बोले लास्ट ईयर किदवाई हॉस्पिटल को भी जो है ना विजिट किए। और एक बार वो जो सोप फैक्ट्री है ना कर्नाटका, मैसूर सैंडल सोप फैक्ट्री जो है, वो फैक्ट्री में वो फैक्ट्री जो है ना स्टार्ट होके कितने हुआ, 100 साल हो गए, 100 साल 100 ईयर्स हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। मुझे उस फैक्ट्री का गवर्नमेंट के तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से द गैप बिटवीन एजुकेटेड यूथ एंड रूरल कम्युनिटीज जो आप जो रूरल में स्वच्छ भारत वगैरह जो वहाँ पे जो जाके काम किए। और एक बात यह है कि ये एनएसएस जो है 1969 में इसका जो है इस्टेब्लिश हुआ। कब? 1969 में जो है ना स्टार्ट करे, लेकिन पहले उतना पॉपुलर नहीं था। उसके बाद जैसा जैसा जो हमारे समाज में खराबियां आते गए तो उसे कैसा है ना पार्ट करना बोल के सोच कर है ना 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ।
It offers students hands-on experience in social, environmental, and health initiatives, promoting a sense of social responsibility with the motto क्या? Not me, but you. Not me, but you. हमारे लिए नहीं, आपके लिए. Focusing on selfless service for society well-being. और एक दो बोल देता हूँ, जस्ट बात करके खत्म करता हूँ. To provide practical experience in community service for students in secondary schools and universities, fostering social consciousness, leadership, and self-reliance. Volunteers engage in diverse activities like literacy drives, health camps, environmental conservation, tree planting, cleanliness drives, rural development, disaster relief, and promoting social harmony. And motto and symbol is that not me like but you, emphasizes the welfare of society over the individual. The badge features the monarch wheel symbolizing readiness for service around the clock with red energy and navy blue palace. So बोलने का मकसद है तो आपको ये जो भी इसके जो एम्स हैं, एम्स के तहत जो है ना, जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं, आपके जो लेक्चरर्स हैं, एनएसएस ऑफिसर हैं, इनकी जो टीम है, ये मोटो रखने का जो है ना आप लोगों को है ना मालूमात कराने के लिए तो यहाँ तक लेके आए. आपको यहाँ लेके आने के बाद जैसा कि आपने जो यहाँ कहा, यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ की जो फिजा है, तो माशाल्लाह कुछ ना कुछ है आप हासिल करके कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं. यू राइट, कुछ ना कुछ पाके कुछ ना कुछ सीख कर तुम्हें यहाँ से जा रहे हैं. बहुत खुशी की बात. हमारे अलमनी के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ है, ये भी बहुत बड़ी बात. और एक बात बोल के खत्म करता हूँ. ये जो कैंपस अब जो देख रहे हैं ना इतना बड़ा, ये कौन स्टार्ट करे मालूम? एक जो इंसान थे उनका नाम हाजी नबी शरीफ. ही इज अनएजुकेटेड मैन, he doesn't know anything, just he was having a land and other thing. उस जमाने में ये जगह है ना डोनेट करके एजुकेशन के वास्ते जो उन्होंने काम किया हाजी नबी शरीफ, तो बहुत बड़ी बात है. वो ज़माने में हम याद करना है, डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब को याद करना है. बहुत से लोग हैं एजुकेशन के लिए डॉक्टर. तो नबी शरीफ साहब के बाद जो है ना उनके बड़े बच्चे अहमद सिराज शरीफ, तो उन्होंने इसके प्रेसिडेंट थे. तो हाल ही में उनका इंतकाल हो गया, तो इनके लिए भी, इनकी मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कीजिए. तो इस तरीक़े का जो माहौल वो ज़माने में उन्होंने क्रिएट किए, हम लोग क्यों नहीं करना? हमारे सोसाइटी को हम एजुकेशन की तरफ किस तरफ जाना है. और एक बात यह है कि आप नाम सुने होंगे, दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर में देवबंद बोल के एक एरिया है. वो देवबंद में क्या है, अरबिक तालीम होती है तकरीबन. वहाँ जाकर आप वो देवबंद को कभी जाकर तुम्हें विजिट करो, हजारों के बच्चे हैं ना तालीम पा रहे हैं. लेकिन जब वो तालीम पा के आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं और कुछ बड़े बड़े कोर्स कर लेके आते हैं, लेकिन वो मदरसे का एम क्या है? वो बच्चों को जब बाहर निकलते हैं तो ये सिखाते हैं, तुम आपके गांव में या आपके इलाके में जाके वहां भी आप एक मदरसा स्टार्ट करना. ये उनको बेसिक सिखाते हैं. वहां से तुम जाके आप वहां एक मदरसा, अरबी मदरसा स्टार्ट करो, 4 बच्चों से स्टार्ट करो, इंशाल्लाह उसमें बरकत देगा. तो वो हिसाब से अगर बोले तो हमारे मोहल्ले के अंदर बिस्मिल्लाह नगर में मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब बोल के, वो ज़माने में देवबंद में उन्होंने पढ़ी हासिल करके जब बेंगलुरु को आए, तो फर्स्ट हम क्या करें, बिस्मिल्लाह मस्जिद है ना, वहाँ हमें उनको वहाँ से अपॉइंट करें. अपॉइंट करने के बाद सिर्फ सुबह में शाम में जो मकतब जो होता था, शायद आप भी पढ़े होंगे चंद बच्चियाँ, तो उसके बाद जो है ना हिफ्स का हम स्टार्ट करें, हिफ्स के बाद है ना आलिम कोर्स स्टार्ट करें. आलिम कोर्स का उनकी सोच ऐसा थी, हम मदरसा चलाना. हम और उन्होंने ये भी करते थे कि जो हम मैनेजमेंट मेंबर होते थे, हमको वहां ले को जाने की कोशिश की. देवबंद में गए, सहारनपुर को गए, हम वहां से थाना भवन गए, तो वहां जाके देखे तो उनका मकसद ये था. लेकिन मैं बोलने का मतलब क्या है, जो आप यहाँ से अगर तालीम पाके जा रहे हैं,
आपकी भी ये कोशिश होना है हम तालीम एजुकेशन किस तरीके से आगे लेकर जाएं। अगर आपको सहूलत है, आप है ना, आपके ख़ानदान में आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास जो है ना अल्लाह दौलत दिया है या कुछ लैंड है, कुछ भी है, स्टार्ट करो, स्कूल स्टार्ट करो। आज हमारी कौम के लिए एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एजुकेशन नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्हें कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा रिचेस्ट भी अगर होगा, उसके पास एजुकेशन नहीं तो एक ना एक दिन बोलने वाले बोलते हैं उन्हें जाहिल भाई, उन्हें क्या भी मालूम नहीं क्या की कर ले, अल्लाह दौलत दिया ले उन्हें, वैसा अच्छी कर ले को जा रहा होता। लेकिन अगर जो हम सोचना है, अगर हम सोचें के लिए कुछ जरिया होना तो वो एजुकेशन है। इसलिए एजुकेशन में जैसी जैसी आपकी जो उम्र बढ़ती है वो तरीके से जो है एजुकेशन में आपका डेवलपमेंट होता जाता रहता है, आपका जो डेवलपमेंट होता रहता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, आप लोग यहाँ जाने के बाद आप खुद पोस्ट ग्रेजुएट बनिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लीजिए, आईएएस हो या जो भी हो, आईएएस बनिए, केएस में जाइए, पढ़िए, एजुकेशन को है ना आप डेवलपमेंट करने की कोशिश कीजिए। और कुछ भी अगरचे नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप जो घर में है कुछ काम वगैरह नहीं, एटलीस्ट आजू बाजू के चंद बच्चों को तो भी पढ़ाइए, एटलीस्ट जैसे मैथ्स हो या कुछ साइंस हो, बच्चों पड़ोस के बच्चों को बुलाइए, कुछ उनका जो माइंड है ना पढ़ने की कोशिश कीजिए, बच्चे हो बच्चियां हो, भला एटलीस्ट उसमें तो भी जो है ना आपकी जो कोशिश है एजुकेशन के वास्ते कम से कम एटलीस्ट वो तो भी होता है। तो एनीवे, तो मैं है ना माफ करता हूँ, माफ करना, दोपहर का खाना खाने के बाद है ना यहाँ हमें कुछ रकम कमा के किसी को ये नहीं करते, सिर्फ जो भी आपसे फीस लेती हैं ये करते हैं, तो आपके बिल्डिंग के ऊपर, आपके उस्तादों के ऊपर, लेक्चरों के ऊपर, मैनेजमेंट में जो भी खर्चा उसलिए खर्चा करते हैं। जिससे जो सरकारी स्कूल है जैसे लिली लेते, लेकिन ऐसे ये नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे नर्सरी से लेके डिग्री तक बच्चे अच्छा पढ़ के पास होना, अच्छा ये होना, एक माहौल बना। जैसा आप भी बोले मदरसे में, माशाअल्लाह मदरसे में हमारे मुफ्ती साहब आने के बाद हर घर में कुरान पढ़ने वाले हो गए बिस्मिल्लाह नगर में। शायद हमारे बच्चे भी पढ़े होंगे यहाँ, हर घर में कुरान पढ़ने वाले हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है कि हमारे बिस्मिल्लाह नगर से हम ना बहुत इसका फायदा होता। अगर आप कुछ भी खुश नसीब है हमें, जो आप पढ़ के काबिल बन के गए, तो बीईटी का नाम होता है, बीईटी की तरफ से हमना भी एक ये हो यहाँ पर। इसमें आप लोग दुआ भी करेंगे तो हमना दुआ भी लग जाएंगी, हमारी तंदुरुस्ती भी हो जाएंगी। जितने भी हमारे हमें शुक्रिया अदा करते हमारे प्रिंसिपल टीचर, देखो अब हमारे पीटी टीचर हैं इकबाल साहब, हमारे वो हम मोहल्ले के ही इकबाल साहब भी, रजाक साहब, हमेशा वो क्या है आपके, चलो भाई को बच्चे ही हमारे मोहल्ले के ही, हमारी मोहल्ले की स्कूल है, इसलिए हम जज्बे से काम करते। कभी भी बोलो उन्होंने ना नहीं बोलते, हर काम में बीईटी में बसों के लिए रेडी होते। क्यों बोले तो ये जो आज इतवार है वो आ गए, इसलिए है आपके लिए। हमारे क्या है इसमें सबके लिए जो कोशिश है, आपकी कामयाबी के लिए हमें कोशिश करें कि कामयाबी के वास्ते आप कोशिश करके हमारी हिम्मत अफजाई आप लोग बढ़ाइए। बस मैं शुक्रिया। To stand before you and say some and speak a few words before you. And you know that this is the second successive year we are conducting NSS camp in this premises, and this time too the management of this engineering college, Gausia, have provided us an opportunity to conduct the second successive camp in this institution. Alhamdulillah, you have completed the camp in this peaceful atmosphere.
And you know that I doesn't want to go in detail because whatever the things that you listen before me, and you know that they have touched all the topics relating to this NSS camp. If I go into detail, I am just repeating, so that I will just quote one incident and wrap up my speech. जैसा कि अभी बताया गया है कि पढ़ने के लिए जो है अज़्म होना चाहिए। सबसे पहले जो है 3 चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक कॉन्फिडेंस होता है, दूसरा कंसर्न होता है, तीसरा जो है कमिटमेंट होता है। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑन विच होल सक्सेस इज डिपेंड ऑन मच। मैं एक इंसिडेंट जो कि बता रहा हूँ, मैं तकरीबन आज से 40-45 साल पहले हमें वॉलंटरी क्लासेस कंडक्ट करते थे। उसमें पीयूसी साइंस, पीयूसी कॉमर्स। पीयूसी साइंस के अंदर भी जो है बहुत से लड़के लड़कियां जो है एमबीबीएस गए हैं और इंजीनियरिंग गए हैं, बीडीएस गए हैं, और इसके अलावा भी जो है चंद लड़के जो है वो सीए वगैरह कर जो है बाहर हैं। उसमें एक लड़का जो है 2nd पीयूसी को मेरे पास आता था, उसका नाम भी मुझे याद है, इमरान बोलकर। वो लड़का जो है कभी भी जो है लेट आता, क्योंकि क्लास अगर चली 5 मिनट भी अगर देर हो गई तो मैं नहीं लेते थे, बाहर ही करना पड़ता उसमें। तो अक्सर ऐसा होता कि देर आता हो, तो मैं एक रोज़ उसे वार्निंग के साथ कहा कि कल से अगर तुम जो है वक्त पर नहीं आया तो मैं क्लास के अंदर नहीं लूँगा। तो उसका एक साथी है, उसने मुझे बताया, सर ये इनके घर के जो हालात हैं, उस हालात को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। घर में बहनें हैं, ये एक भाई है, किसी की शादी होकर नहीं है, और ये खुद जो है अल-अमीन कॉलेज से कॉलेज छूटने के बाद जो है मार्केट जो है रसल मार्केट में, जहाँ मछली का जो बाज़ार लगता है, वहाँ खुद बूटे उठाकर डालकर जो लिख कर आता है, उसमें उसे काफ़ी देर होती है। और यह होता कि 5 मिनट या 10 मिनट अगर ताख़िर से आता तो मुझे मालूम हो गया कि यही है एक सबसे बड़ा रीज़न जो ये देर आने का। और दूसरी बात जो ये है, जब वो आकर बैठता तो उसके बाजू लड़के नहीं बैठते थे, क्योंकि मछली की बात होती थी उसमें। सब उठ कर चले जाते और वो अलग बैठकर पढ़ता। तो मुझे बड़ा गिरा गुजरा, क्योंकि हमने ये पूरी ज़िंदगी जो है इसी में गुजार दी है कि बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए कुछ ना कुछ करना। आज भी हज़ारों बच्चे जो है हमारे सामने जो है, मैं हाल ही में जो बताया था कि मैं दुबई भी गया था, कई स्कूल्स को जाकर जो मैं विज़िट भी कर आया हूँ। तो ये बच्चा जो है उस ज़माने में जो है सऊदी गया है। तो हुआ इसे कि जब मैं इसके ये देखता मार्क्स, तो क्लास में सबसे पहले जो है अव्वल नंबर पर है। तो उस वक्त से क्या हुआ, जब लड़के उठकर चले जाते तो मेरी सीट के पास बिठाकर पढ़ाता है इसे। चलो यही चीज़ है, लोगों को जो है कुछ ना कुछ महसूस होना चाहिए कि जिसके पास अज़म है वो जो है आसमानों पर उड़ सकता है। लिमिट से नो दैट इवन दैट आसमान, इंसान के लिए जो है इवन स्काई इज द लिमिट। बिफोर दीज थिंग्स, यू नो दैट कमिटमेंट, यू नो दैट कॉन्फिडेंस, कंसर्न, कमिटमेंट, दीज थिंग, ये बच्चे में मौजूद थी। तीनों के 3 बहनें हैं, बाप कमा नहीं सकते, घर का किराया है, और ये जो है खुद मछली के मीट उठाता है। उठाकर जो है इसने जो है तकरीबन 90% लेकर पास किया, और वो सीए का जो है पहला तालिब इल्म रहा, और वो जो है सऊदी में आज उसकी ये पोजीशन है। यही अज़म है, यही चीज़ है, वो कर दिखाना है। आज जो है तुम यहाँ NS के लिए जो है
जो उसके चार्ट में जो चीज़ें हैं वो पूरे कंप्लीट कर हैं। उस ज़माने में अगर आप होती तो जिस वक्त हमने बनाया था बीईटी, उस वक्त आपको साथ ले लेते, क्योंकि खेतों में मड़ियों में कीचड़ में बनाए हैं। उसको हटाना, खिसाना, उसके बाद जो है उसका काम आगे बढ़ाना, यही होता रहा। ये भी है कि हमारे मज़हब के अंदर पाकी सफाई का अंसर जो है सबसे पहला है, और इसका जो है आधा ईमान भी कहा जाता है। आज हमें वी आर आर लर्निंग दिस थिंग्स इन दिस दैट NSS दिस कैंप्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें बताने की हैं, जबकि हमें बताया जा चुका है। अब हम जो है सिर्फ ये ज़ाहिरी तौर पर जो हम जो है मजबूरी तौर पर हम जो काम कर रहे हैं करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब जो काम जो आपने मुकम्मल किया है, ये वंस अगेन आई थैंक्स द मैनेजमेंट ऑफ दैट Gausia Engineering College. It is a magnanimous gesture they have shown towards to conduct the second successive camp in this institution in very peaceful way. Alhamdulillah, ये जो है मुझे बड़ी खुशी भी हुई, कामयाबी के On behalf of NSS unit of BET Sanat Degree College, I propose the vote of thanks for this valedictory function of our NSS special camp held at Gausia Engineering College. First and foremost, I express a sincere gratitude to the management of Gausia Engineering College for according permission and to conduct the NSS special camp for their continuous support and encouragement. A special thanks to Mr. Amanullah, Mr. Dr. Salim, Mr. Girish and Mr. Saifullah in absentia for their constant support, cooperation and hospitality extended to our NSS unit during the camp. Special thanks to Mr. Rauf sir for extensive coverage of inaugural and valedictory program. I also extend my sincere thanks to our respected principal, Professor Sumaya Fatima, and Vice Principal Salma Fatima for their constant encouragement, guidance, and inspiring leadership. Your support continues to motivate us in all our endeavors. My sincere appreciation goes to our NSS Program Officer, Ms. Tabassum, whose dedication, planning, and tireless efforts has made this camp meaningful and successful. I also thank our committed NSS team members, Ms. Najmus Sahar, Ms. Sadikha Athar, Ms. Bibi Aisha, Ms. Suhana, Ms. Tasin Banu Nadaf, who is also Physical Education Director, and Ms. Gaurava for their teamwork and wholehearted support. I take this opportunity to express a heartfelt thanks to our esteemed management, Mr. Abdul Muhib Sir, Vice Chairman, Mr. Sheikh Umar Sir, Vice Chairman, and Mr. Siddiq Pasha Sir, Honorary Secretary. Thank you all for your constant encouragement, support in organizing such impactful program for our students. I also thank Mr. Harun Sir, our bus drivers, Mr. Iqbal and Mr. Razak. Finally, I extend my sincere thanks to all our enthusiastic NSS volunteers. Your discipline, teamwork, and spirit of service truly reflects the NSS motto, not me, but you. This camp has helped you grow in leadership, communication, teamwork, and social responsibility. Thank you all once again for making this NSS special program a grand success. Jai Hind, Jazakallah Khairan. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता